Now, next topic, consistent and inconsistent system of linear equations. First, consistent system of linear equation. What is consistent system of linear equation? A system of two linear equations in two known as is said to be consistent if it has at least one solution. मीन्स कंसिस्टेंट में आपका सॉल्यूशन कितना होगा? वन सॉल्यूशन. ओके. नाउ सेकेंड, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. Inconsistent system of linear equation. A system of two linear equations in two unknowns is said to be inconsistent if it has no solution at all. Okay. For example, x plus y equal to 3 and 2x plus 2y equal to 7. Clearly, we cannot find values of x and y which may satisfy both the given equations simultaneously. Hence, the given system is inconsistent. Okay. Now, next topic, solving simultaneous linear equations graphical method. अब हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे simultaneous linear equation. Let the given system of linear equations be a1x plus b1y plus c1 equal to 0. इक्वेशन फर्स्ट हम इसको लेट करते हैं. एंड a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0. ये आपका इक्वेशन 2 लेट करते हैं. ऑन द सेम ग्राफ पेपर we draw the graph of each one of the given linear equations. Each such graph is always a straight line. Let the lines L1 and L2 represent the graphs of equation first and second respectively. Now the following cases arises. तो इसमें आपका अलग अलग केस arise होता है. तो हम लोग सबसे पहले केस 1 पढ़ते हैं. केस 1, when the lines L1 and L2 intersect at a point. जब लाइन आपका L1 and L2 इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे करता है तो आपका ग्राफ कैसा बनता है? तो देखिए यहाँ हमने सबसे पहले ये ग्राफ खींचा x एक्सिस एंड y एक्सिस. लेट द ग्राफ lines L1 and L2 intersect at a point P अल्फ़ा बीटा as shown in the adjoining figure. इस फिगर में देखिए आपका टू लाइन L1 and L2 intersect at a point, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है. और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को हम लोग P अल्फ़ा एंड बीटा. अल्फ़ा मीन्स x एक्सिस एंड बीटा मीन्स y एक्सिस. Okay, then x equal to alpha and y equal to beta is the unique solution of the given system of equation. Okay. Now case 2. case 2 में हम लोग देखते हैं when the lines L1 and L2 are coincident. means L1 and L2 are coincident. ओके, कॉन्सिडेंट मीन्स इसी लाइन पे. व्हेन द टू ग्राफ लाइन्स L1 एंड L2 coincide, the given system of equation has infinitely many solution. इसमें infinitely many solution, x एक्सिस एंड y एक्सिस और आपका L1 एंड L2 coincide. ओके, तो आपका ये केस 2 में किस तरह का ग्राफ बनेगा? ये आपका ग्राफ इसी तरह का ड्रॉ होगा. ओके, कॉन्साइड करेगा ये एक ही लाइन पे. नाउ केस 3, व्हेन द लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल. यदि L1 और L2 जो आपका लाइन है वो पैरेलल है एक दूसरे के,
In this case, there is no common solution of the given system of equation. इसमें आपका क्या है कि no common solution, कोई common solution नहीं होगा. Thus, in this case, the given system is inconsistent. ये कैसा रहेगा आपका? Inconsistent मीन्स देख रहे हैं आप L1 एंड L2 दोनों क्या है? पैरेलल लाइन्स है x एक्सिस एंड y एक्सिस पे. ओके, तो आपका ग्राफ इस तरह का ड्रॉ होगा. नाउ समरी क्या है? अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन x and y has first a unique solution if the graph lines intersect at a point. Second, infinitely many solutions if the two graph lines coincide. And third, no solution if the two graph lines are parallel. Okay, now अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इस ग्राफ लाइन को कैसे ड्रॉ होगा. Solve graphically the system of linear equations x plus 2y equal to 3 and 4x plus 3y equal to 2. Solution: on a graph paper, draw a horizontal line x dash ox and a vertical line y o y dash as the x axis and the y axis respectively. हम लोग पहले लाइन ड्रॉ करेंगे x एक्सिस एंड y एक्सिस का. ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 3. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं x एंड y का. तो x प्लस 2y इक्वल टू 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 2y इक्वल टू 3 और x को इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव निगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो 3 माइनस एक्स हो जाएगा. तो इसको हम लोग y इक्वल टू 3 माइनस एक्स और y आपका 2 नीचे आ जाएगा, तो y इक्वल टू 3 माइनस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं. अब हम लोग x और y का सॉल्यूशन निकालते हैं, x एंड y का वैल्यू. तो पुटिंग x इक्वल टू -3, यदि हम x का वैल्यू -3 पुट करते हैं तो x का वैल्यू -3 पुट किए. ओके, तो देखिए हमारा क्या इक्वेशन बना हुआ था, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स बाई 2. तो यहाँ पे देखिए x के जगह क्या पुट किए? -3. तो 3 माइनस 3 बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 6 बाई 2 इक्वल टू 3. तो x का वैल्यू यदि -3 पुट किए तो y का क्या आया वैल्यू? 3 आया. ओके, अब इसी तरह हमको 3 सॉल्यूशन सबका निकालना है. तो अगेन पुटिंग x इक्वल टू -1 पुट किए तो हम उस तरह निकाले, सॉल्व किए तो आपका क्या आया? y इक्वल टू 2. ओके, फिर हम पुट किए x इक्वल टू 1 तो y का वैल्यू भी क्या आया? 1. ओके, तो देखिए यहाँ 3 आपका आ गया x का वैल्यू एंड y का वैल्यू. अब चलिए हम लोग दूसरा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ग्राफ ऑफ 4x प्लस 3y इक्वल टू 2. तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. 4x प्लस 3y इक्वल टू 2, 3y और 4x को हम इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव निगेटिव में चेंज हो जाएगा. तो 2 माइनस 4x एंड आपका y इक्वल टू 3, ये आपका नीचे चला जाएगा, तो 2 माइनस 4x बाई 3. ओके, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं. पुटिंग x इक्वल टू -4, यदि हम x के जगह -4 पुट किए तो आपका y का वैल्यू क्या आएगा? तो y इक्वल टू 2 माइनस 4x बाई 3, ये इक्वेशन है. अब देखिए x के जगह क्या पुट किए? -4, तो 4 4 जा 16 और माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 16 बाई 3 मीन्स 18 बाई 3 इक्वल टू 6. यदि x का वैल्यू -4 पुट किए तो y का क्या आया वैल्यू? 6 आया. ओके, अब हम लोग इसी तरह पुट किए, x का वैल्यू -1 तो y का क्या आ गया? 2 आ गया. एंड x का 2 पुट किए तो y का क्या आया? -2. ओके, अब हम लोग ग्राफ पे इसको ड्रॉ करते हैं दोनों लाइन को. तो देखिए जो वैल्यू आपका दिया हुआ था उसको हमने पहले
डिनोट कर लिया कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले x इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू -3 मीन्स x -3 और y 3, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद इसी तरह सारा हमने डिनोट कर लिया कहाँ कहाँ है, और उसके बाद जब लाइन खींचे तो ये आपका एक पॉइंट पे ये मीट किया, मिला। ओके, मतलब ये इंटरसेक्ट किया। तो देखिए ये आपका ग्राफ ड्रॉ है, किया गया है, एंड द टू ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट -1 2। ये आपका इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे किया है? -1 एंड 2 पे। ओके, तो देयरफॉर x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, बाय स्टूडेंट्स।